Hi everyone, welcome back to my channel Manifestation. एंड मुझे एक दो सजेशन आए कि मुझे वीडियो थोड़ा कम टाइम का बनाना चाहिए, तो मैं थैंक यू सो मच पहले तो सजेशन देने के लिए। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो बहुत कम टाइम के हों ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो देखने में। आज चलो तो इसलिए स्ट्रेट टू द पॉइंट, आज मैं स्पेशली आपसे ये वीडियो उन सब के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, स्पेशली फॉर women. Please listen to this video very very carefully. uh, many of us we face the problem in our relationship related with that let me come to the point. Okay, so after marriage you will observe that after 6 or 7 months you will start facing problems related with that your relationship is not really going the way you are supposed to. uh, you have thought of, or you have imagined that okay, my life will be sorted. And I find many people, after talking to them, that especially the ladies, after marriages they feel that after 6 7 months they will start feeling like they are not getting enough time, they are not getting enough emotional support from their partner and from their in-laws. They are also disconnected from their friends, from their families, because they have to nurture the new relationship and the new life. And then these problems starts happening. And what happens is, when you start facing these problems you will start keeping yourself to very close. You are not going and sharing with people that what's the problem is happening. Or else what many people does is they share with many people, okay, their friends, their families, their relatives, that okay, I'm not feeling good, or maybe this is happening or that is happening. Let me tell you a very clear fact. Do not underestimate the help, the support, and the role played by the family in marriages. Okay, let me repeat it again. Do not underestimate the role of family and the importance of family in the marriages. See, let me explain you. Till today you see those families who is having a, joint families, those couples who is staying in the family or having their cultural beliefs, following their family's belief system, meeting with them, spending time with them, there are very less chances that they will feel that kind of problem. Okay, again, the point is added that family should be very caring, supporting, very open to talk, and very open to spend time and to enhance the beauty of relationship. If you're not finding those things in your family, then this is but obvious that you have to separate yourself and your partner as well to establish a new thing. Okay. Second thing, there are five problems, majorly five aspects of your life where you feel or you face the problem, especially for women's. The first problem is you will find that you are not getting very open emotionally, you are not capable, or you are not feeling too good to share all of your emotion with your partner. Second, you will face so many anger issues, so many unnecessary arguments and the fights in the relationship. Third, if you're not working, you face the problem related with finances, and you face like you have so many time spending at home and you are not you are dependent on somebody to help you, to give you money, or to enhance your financial insecurities. Fifth problem is you will face a physical pain, physical problems in your body, and you will feel like if I'm sharing every time, then my partner is becoming irritated with it, or it seems like he understand like that most of the time you're complaining.
about the physical pain, physical problems, or illness, any kind of. And the fifth problem, you will find like you will suddenly, if all this happening with you will face like you are getting out from all the zone. You don't feel to go and sit with the people, you don't feel to be into the social connections or to meet people outside. Now let me tell you a very clear thing, that all these things are interconnected, and the major point of the connection is your emotional thing. Okay, suppose if you are not feeling happy emotionally, you are not feeling emotionally heard, you are not feeling emotionally strong, then these will impact your physical life, this will impact your relationship, this will impact your family life as well, family connection as well, there is your spirituality as well. And even if you are working women, many times the women feel like I am going outside to do my job because I need it, and after coming back to home I have to handle the home also, so maybe I'm doing a lot. And that is also becoming a major reason for having separation between the partners. And separation, it doesn't mean that always I'm talking about taking marriage into the divorce or something. Separation also means that you are staying together but you are not connected. Then what is the point if you are staying together and you are not connected with each other? There is no sense, right? However, when you are going for the marriage, this is called a life partner. A partner, a person with whom you are sharing each and every moment of your life. And even after having those things in your life, you are not feeling safe, you are not feeling heard, you are not feeling handled carefully. Then you face like you think like that, what exactly I'm doing in my life. And these are the problem ladies are facing nowadays in their relationship. You know why this is happening? I think this video is again going to be little larger, but listen me carefully. This is happening because we are going for the marriage from the place of understanding that if your age is 30 or 31 or 28, this is the age for marriage, the perfect age for marriage, so go. Okay, the second is that marriage is a necessity of our society, and this societal pressure comes to your parents, and then your parents pressurize you, and then you will choose either in love marriage or arranged marriage. Both of the things happens that many people will say कि, okay, you have chosen this person, you love this person, now you must go for the marriage and do marriage and settle your life. Okay, but the actual format of marriage should come from your healing part, from your spiritual portion of the life. Okay, that is a main gap that everyone is facing problem in their relationship. Everyone, almost everyone. What is happening is, I have talked to many people, I have observed many people, and I find this gap is much larger, that even after 5 years or 7 years of marriage, you are not able to cover those gaps. And then the same things is happening in your life, even after child, even after having 10 years of marriage. Everything looks good on social media. एक मूवी का डायलॉग है कि आप ऐसे डिवोर्स के लिए कैसे फाइल कर दिया आपने, आपके तो फ़ोटोज़ देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आपके पास कभी प्रॉब्लम होंगे. तो उसमें हीरोइन बोलती है कि आपने कभी किसी को देखा है तस्वीर में बुरी चीज़ें लगाते हुए या रोते हुए तस्वीर खिंचाने में, है ना? तो मैं यही बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया पे लाइफ में जो सामने से देख रहे हैं उनको सारी चीज़ें परफेक्ट दिख रही है, बट बेसिकली इंटरनली वो चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं. मैं बताती हूँ क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने शादी सिर्फ 3 बेसिस पे चूज़ करी है अपने लाइफ में. या तो हम किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फैमिली को पता रहता है, फैमिली सेइंग कि ओके यू आर कंफर्टेबल, गो फॉर द मैरिज, ओके, इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग. दूसरी चीज़,
फैमिली बोलती है अभी एज हो गया तुम्हारा, तुम अच्छा खासा कमा रही हो और चलो अभी शादी कर लो, यू हैव डन एवरीथिंग इन योर लाइफ, देन यू परस्यू द मैरिज. थर्ड थिंग, मेजरली वी फील द लोनलीनेस, वी फील कि हाँ यार दूसरे लोगों को देखो वो कितने अच्छे से अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो शायद मेरे लिए भी अच्छा होगा अगर मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है. एवरीथिंग लुक्स गुड, क्या दिक्कत है, वो अच्छा कमा रहा है, मैं अच्छा कमा रही हूँ, चलो शादी कर लेते हैं. बट शादी में जाने से पहले अगर आप हैं 30 ईयर्स में हैं, 31 ईयर्स में हैं, मैं सच में उन लड़कियों के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ जो एटलीस्ट 30 और 30 ईयर्स के एज होने के बावजूद भी शादी जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंट तब तक नहीं लेती हैं जब तक वो अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग और अपनी लर्निंग को इम्पैक्टफुल नहीं बना लेती हैं. ठीक है, तो अगर आप उनमें से कोई एक हो जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहे हो, तो ट्रस्ट मी, टेक योर टाइम बट मेक द बेस्ट डिसीजन एट द बेस्ट टाइम. ठीक है. सो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक बिलीफ सिस्टम को कैरी कर रहे होते हैं. ठीक है, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से. उस पूरे 28-29 ईयर्स के टर्मोइल में, पूरे लाइफ के अप एंड डाउन में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हम दबा के रख देते हैं, ना तो किसी को बता पाते हैं ना ही किसी से शेयर कर पाते हैं, क्योंकि कई बार जो हमारे लाइफ के इवेंट्स होते हैं उसमें हमारी फैमिली भी 100% इन्वॉल्व होती है. तो आउट ऑफ द एम्पैथी कि हम अब किससे बात करें, हम किससे बताएं कि ये चीज़ आपकी हमें बुरी लगी है, ये चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए हम उन चीज़ों को दबाते रह जाते हैं. और जब हमारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है जो कि ये दोनों के साथ हो रहा होता है, ठीक है, लड़के और लड़की दोनों के साथ हो रहा रहता है, जब हम एक साथ आते हैं रहने के लिए, तो क्या होता है, मेजरली वो चीज़ें छोटा छोटा इम्पैक्ट हमारे रिलेशन पे देने लगती हैं. अब मैं क्यों बता रही हूँ, इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आप बचपन से एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने कभी इमोशनली अपफ्रंट आके किसी को नहीं बोला कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, या फिर आप बचपन से एक ऐसे इंसान रहे हो जिससे अगर तुम उदास हो पूरे 2 दिन 4 दिन और किसी चीज़ से परेशान हो और सडनली आपका कोई फ्रेंड आता है और या फिर कोई नोन आता है, आपको कुछ कहीं बाहर जाते हो आप उसके साथ, कुछ गिफ्ट लाता है या कुछ भी ऐसा होता है एंड यू फील हैप्पी एंड देन यू आर लाइक कि ठीक है, तो आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिस्टम को ये मैसेज मिल चुका है कि वेन एवर आई एम फीलिंग दैट वे मे बी समबडी विल कम एंड गिव मी दिस, तो आई विल स्टार्ट फीलिंग ओके और हैप्पी. ठीक है, बट समझो इस चीज़ को, ये छोटी छोटी जो चीज़ है ना वो आपकी है, उसके लिए आपको अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली या पार्टनर की फैमिली पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, बहुत टफ है. क्यों नहीं कर सकते, आपकी ही तो लाइफ है ना. आप समझो ना अपने साथ, आप अगर अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने इमोशनल वेलबींग के लिए आप किसी और पे डिपेंड होते हो तो वो कैसे समझेगा इस चीज़ को. आपकी 30 साल की जर्नी है या 28 साल की जर्नी है, वो इंसान अभी अभी आपसे मिला है, वो 8 महीने में कैसे इस पूरी जर्नी के गैप को कवर करेगा. और ये दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की कंडीशन में ऐसा होता है. तो मेरा कहना ये है कि अगर आप अभी मैरिड नहीं हो तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पे, अपने छोटे छोटे जो आपके ट्रॉमास हैं उस पे काम करना शुरू करो. अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को कि क्या प्रॉब्लम है, मेरा कब मूड ऑफ होता है, कब मुझे बुरा लगता है, कब मुझे किस चीज़ की नीड होती है, कब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए. अंडरस्टैंड, यू आर द बेस्ट बुक इन दिस वर्ल्ड, स्टार्ट रीडिंग योर सेल्फ. अब आप बोलोगे कि दी ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, इसके लिए सबसे अच्छा समय है आप अपने साथ समय बिताना शुरू करो. आप पूरे दिन में कितना टाइम अपने आप को देते हो जहाँ पे आप बैठ के खुद के साथ बात करो. आप जब खुद के साथ बैठते हो, बात करते हो, तो आप अपने आप को ज़्यादातर जान पाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हो. ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ. मेरी एक ऑफिशियल मीटिंग थी और हम लोग सारे लोग उस मीटिंग में गैदर हुए थे और वहाँ पे एक इंसान आफ्टर दैट मीटिंग, उन्होंने मेरे बॉस को बोला कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है. तो सर ने बोला कि ठीक है, सबको जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ.
तो फिर उसने जो भी बात करनी थी अपने इंक्रीमेंट वगैरह की बात करी। यहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब भी हम किसी बड़े इंसान से मिलते हैं जो हमारे पोजीशन से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पे होते हैं, फिनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, और हमें उनसे कोई हेल्प लेनी होती है, इवन आप फैमिली गेट टुगेदर में भी जाओ, अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है जिनसे आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, चाहे वो फिनेंशियल और प्रोफेशनल हेल्प हो, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि वो इंसान के साथ आप अकेले में मिलो, ठीक है, ताकि सबको पता नहीं चले। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो हर किसी को पता नहीं चले, लेट दिस थिंग्स हैपन फर्स्ट, देन पीपल विल गेट टू नो, है ना। वैसे ही जब आपको अपने लाइफ में कुछ बेस्ट चीज़ चाहिए होती है, तो आपको दूसरों के पास नहीं भागना, अपने पास आना है, सिट विद योर सेल्फ, ठीक है। और जब अपने साथ रहो, जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम हो, तो आपके दिल में, दिमाग में जो भी थॉट्स आ रही हों, जो भी फीलिंग्स आ रही हों, उसे एक्सेप्ट करना शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रेयर भी बताती हूँ, उसके लिए सबसे बेस्ट है, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल माई करेंट सिचुएशन, डियर यूनिवर्स, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल माई करेंट सिचुएशन, आई एम एक्सेप्टिंग माई इमोशन, आई एम एक्सेप्टिंग माई फीलिंग, आई एम एक्सेप्टिंग माई एंगर एज वेल, and also I'm requesting you to give me the wisdom and strength to realize where I'm getting wrong. ओके ये प्रेयर जब आप लिटरली ऐसे करोगे ना, जिसमें आवाज़ आपके दिल से आ रही हो और वो आपके कानों तक पहुंच रही हो, उस टाइम ही, उस मोमेंट ही आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा दैट द होल यूनिवर्स इज़ लिसनिंग टू यू एंड इट इज़ कंस्पायरिंग द रिजल्ट टू कम टू यू। ये दोनों के लिए है, जिनकी शादी हुई है या जिनकी शादी नहीं हुई है, स्टार्ट मेकिंग स्पेस फॉर योर सेल्फ। दूसरी चीज़, कुछ भी इवेंट हो रहा हो, कुछ भी इवेंट, मैं कह रही हूँ कुछ भी इवेंट, बहुत दोबारा मैं बोल रही हूँ, मतलब आपको कहीं इवन लग भी रहा है कि इन केस आपके पार्टनर पे आपको डाउट भी हो रहा है, इन दैट इवेंट ऑल्सो अपने कामनेस को इतना मेंटेन करो कि आप रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। किसी चीज़ पे रिएक्ट कर देना, झगड़ा कर लेना, चिल्ला के बोल देना, आपकी एनर्जी को, आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस को और ही डाउनग्रेड ही करेगा, अपग्रेड नहीं करेगा। बट अगर आप उस पूरे सिचुएशन को, जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी ने कुछ बोल दिया जो बुरा लगता है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा साइलेंट होके देखो, टेक ए स्टेप बैक। मैं बताऊँ सबसे मैजिकल चीज़, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। उस टाइम पे शांति से एक ग्लास पानी लेके घुट घुट करके पीना है पानी को, स्ट्रेट वे मत पी लेना, एक एक सिप लेना है और आराम से पियो, एटलीस्ट 10-12 सिप पानी पियो, और फिर आप देखना आपके अंदर कितना कामनेस मेंटेन हो जाएगा। और आप जब रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करोगे ना, तो सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्टफुली सुनेगा और आपके रिस्पेक्ट में वो भी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, लिखना अपने बारे में, और अपने आप को एक प्यारा सा लेटर लिखना कभी मत छोड़ना। आज से 6 महीने के अंदर आपको अपनी लाइफ जैसी चाहिए, उसको लेके आप किसी भी लैंग्वेज में, जिसमें भी आप ठीक हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें आप लिखना शुरू करें कि डियर माई हायर सेल्फ और डियर यूनिवर्स, नाउ आई एम हैविंग द बेस्ट लाइफ, माई हस्बैंड लव्स मी अ लॉट, I am having the beautiful bond with my partner and I am living my best life। ये ना मंथ का 2 दिन ऐसा बनाओ, कोई भी दिन हो सकता है, अगर पूर्णिमा हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आप अपने सेल्फ को एक लेटर लिखें एंड स्टार्ट कीपिंग दैट लेटर, ठीक है, एनवेलप में करके। अगर उसकी ब्यूटी को और एनहांस करना है तो उसमें कुछ गुलाब की पत्तियाँ डाल दो, पैक करके रख दो। क्या होता है, जब आप खोलोगे ना तो आपको खुशबू अच्छी आएगी, तो आपको अच्छा लगेगा, एंड कीप इट समवेयर, ठीक है। आप देखना ये छोटी सी ट्रिक आपके लाइफ में इतना प्यारा चेंज लाती है ना, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड में, ठीक है। नाउ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी छोटी छोटी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है, वो ही आपके लाइफ में बिल्डअप करती है, आपके
नन शेयरिंग पार्ट को, कि आप किसी से शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते, फिर वो धीरे धीरे आपके फिज़िकल बॉडी पे इम्पैक्ट दिखाने लगती है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल आता है तो आपके एब्डोमेन में, स्पेशली फॉर लेडीज़, आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होने लगेंगे। हर बार क्रैम्प आपके फिज़िकल बॉडी से नहीं, कई बार आपकी इमोशनल वेलबींग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एब्डोमेन पेन होने लगेगा, आपको शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होने लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो पहले खुद को इस स्टेट पे ले आए जहाँ पे आप अगर कुछ बोले तो उसकी अहमियत होगी, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बोलना बंद कर दें। कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठना शुरू करें, खुद के साथ बात करना शुरू करें, खुद को टाइम देना शुरू करें। अगर आपकी कुछ बेस्ट हॉबीज़ हैं तो उसको परस्यू करें, ठीक है। एंड देन स्लोली टेक द टाइम एंड यू सी दैट दैट पर्सन विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू, ठीक है। तो आई होप ये मैसेज आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप आप लोग हमेशा मेरे वीडियोस को बहुत लाइक देते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, मुझे अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, मैं जो कुछ भी बताती हूँ वो अपने रियल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैं ऑलमोस्ट रात के 1 घंटे 1.5 घंटे और कई बार 2 घंटे का टाइम ऐसा होता है जब मैं अकेले बैठना पसंद करती हूँ, अपने लिए कुछ लिखना पसंद करती हूँ। आप देखोगे मेरे टेबल पे डायरीज़ भरी रहती हैं जहाँ पे मुझे हमेशा लिखना पसंद होता है, काम करना पसंद होता है, अपने अपने ज़ोन में रहना पसंद होता है। और वो चीज़ मुझे, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ ना कि वो चीज़ मुझे सिखा दी है। बहुत सारे रिलेशन का, लाइफ के एस्पेक्ट्स का जो गैप है वो चीज़ मुझे सिखा चुकी है, ठीक है। लोग बोलते हैं सॉलिट्यूड में रहो, सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब ये भी होता है कि आपको जब ज़रूरत है, आप एटलीस्ट इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि आप लोगों को बता सकते हैं कि देखो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी ये हेल्प कर सकते हो क्या, ठीक है। वो किया हेल्प तो अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं, लुक फॉर अदर अल्टरनेटिव। आप खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं, फाइंड दैट वे। बट सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है कि जब आप अकेले हैं, अपने साथ हैं, तो क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने साथ बैठ के खुद को तसल्ली में डाल पा रहे हैं कि हाँ, आज मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है खुद के साथ, ठीक है। ये सोशल मीडिया के फ्रेम में मत जाओ कि आज मैंने चाय, खुद के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये सब ऐसा नहीं होता है। खुद के साथ जो बैठने का समय होता है ना, अगर इंसान को वो समय समझ आने लगी, उसकी महत्व समझ आने लगी ना, तो वो इंसान इस तरीके के वीडियोस पे नहीं बताएगा इस तरीके की चीज़। वो फिर शांत होने लगता है, वो फिर अपनी लर्निंग बताने लगता है आपको कि हाँ, मुझे ये गैप फील हुआ, मुझे ये रियलाइजेशन हुई है, तो चलो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्या पता किसी की मदद हो जाए इससे, है ना। तो बनाओ ना अपने आप को खूबसूरत, एक ही तो लाइफ है। और फिर आप देखना, आपकी हैप्पीनेस, आपकी इमोशनल वेलबींग, आपके फिजिकल वेलबींग, एवरीथिंग विल कम इनटू अलाइनमेंट, ओके। और अगर इन चीज़ों को और भी इन्हांस करना है और आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे पुराने 2 वीडियोस 3 वीडियोस हैं, वो सारी चीज़ें देखो। आपको छोटी छोटी हैबिट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने लाइफ को और भी इन्हांस कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल, ओके, बाय।